ભારતી સાવલા. છેલ્લા 5 વર્ષથી વિનોદ સર સાથે જોડાઈ છું અને મને અહીંયા બહુ જ ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. અને સરે અમને નગમા ગેલેરી પણ બતાવી અને આજે અમે ઇન્ટરનેશનલ ફેરમાં બી આવ્યા છીએ અને આજે અડધું જ જોયું છે પણ એટલું સરસ છે કે આપણી કલ્પનાની બહાર જે આર્ટિસ્ટ લોકોએ કામ કર્યું છે આપણી કલ્પનાની બહાર છે. યુ કાન્ટ ઇમેજિન ઓલ્સો. એટલે બહુ જ સારું લાગ્યું, ઘણું બધું શીખવા મળે છે. ત્યાં લોકોની ભીડ પણ એટલી સરસ હતી અને લોકો બી બહુ સારા બધા દેખાતા હતા. ડ્રેસિંગ એ લોકોનું સરસ હતું. કોઈની કઈ સ્ટાઇલ, કોઈની કઈ સ્ટાઇલ, કોઈ કેવી રીતે એંગલમાં ફોટોગ્રાફ કરતા હતા. ઘણા લોકોને શીખવા મળ્યું હશે કે હવે એ લોકો બી, અમે બી, એ લોકો બી આગળ વધવાનો આ બધું શીખીને આગળ વધશે. અને અમને તો ઇન્સ્પાયરિંગ થયું કે ઘણું બધું કરી શકાય એમ છે અમારા. કે જે કલ્પનાની બહાર છે કે જે જોયું નથી એટલું આમ બહુ આનંદ ફ્રેશ ફીલ થઈ રહ્યું છે. આજે બીજે દિવસે અમે આર્ટ ફેરમાં આવ્યા અને અમને બીજું જુદું બધું ઘણું બધું જોવા મળ્યું. આજે નવું સાલનું બાકી હતું એ આજે પૂરું કર્યું પણ સાથે જ કોઈ જાતની તુલના જ ન કરી શકે કે આર્ટ કઈ દિશામાં છે અને કેટલે સુધી પહોંચવું તમારે. વાસ્ટ ફિલ્ડ છે આ, જેને જે ગમે એ આર્ટ, કોઈ પરિભાષા નથી આર્ટ માટે.
મેં તો કોઈ દિવસ વિચાર્યું નહોતું કે હું આર્ટ ફેરમાં જઈશ અને આર્ટ ફેર શું છે એ બી મને ખબર નહોતી, પણ થેન્ક્સ ટુ વિનોદ સર કે જે અમને આર્ટ ફેરમાં અમને લઈ આવ્યા અને બહુ સરસ જોવા મળ્યું. હવે અમને અમારા કામમાં બી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની જરૂર છે, એટલે હવે અમે કરશું. એવરીવન, મારું નામ વિનય પંચાલ છે. હું વિનોદ સર સાથે 5 વર્ષથી જોડાયેલો છું અને અમારો શો આવી રહ્યો છે 17 મે અમારો શો આવી રહ્યો છે. તો વિનોદ સર અત્યારે અમને બધાને લઈને દિલ્હી આવ્યા છે. અમે લોકો અહીંયા આ એક્ઝિબિશન જોયા, બધા વર્ક જોયા, એટલે અમને ફીલ થયું કે ના, અમને બી અમારા શોમાં થોડી ઘણી ભૂલ દેખાઈ ગઈ છે. તો કે અમને બહુ બધું નવું જાણવા મળ્યું. ઇન્સ્ટોલેશન જોયા, પેઇન્ટિંગ્સ નવા જોયા અને મજા આવી ગઈ એમ. હેલો એવરીવન, મારું નામ આંગી પરીખ છે. હું ઘણા વર્ષોથી વિનોદ સર સાથે જોડાયેલી છું. અમે લોકો અત્યારે દિલ્હીમાં ઇન્ટરનેશનલ આર્ટ ફેર જોવા આવ્યા છે. અમે હમણાં રિસન્ટલી ગુજરાતમાં ગાંધીનગર આર્ટ ફેર જોયો હતો. ગાંધીનગરમાં અને અહીંયા ઇન્ટરનેશનલ આર્ટ ફેરમાં ઘણો ફરક છે, ઘણો કામમાં વેરિએશન્સ જોવા મળ્યા છે. ઇન્ટરનેશનલ આર્ટ ફેરમાં ઘણા આર્ટિસ્ટો, ફોરેન આર્ટિસ્ટો બી છે. ફોરેન આર્ટિસ્ટોને એમના આર્ટવર્કનું પ્રેઝન્ટ કરવાની રીત, એમનું કામ બહુ જ ડિફરન્ટ હતું. એમનો ઘણા બાયર્સ બી જોવા મળ્યા હતા અને ઘરની 4 દિવાલો વચ્ચે રહીને કામ કરો એના કરતાં બહાર નીકળીને આવી રીતે ફેર જોઈને કામ કરવામાં ઘણો ફરક પડે.
My name is Ashna Sheikh. I'm 18 years old and I've just completed my 12th boards and I'm pursuing interior designing. My dream is to go for designing. Today I've come to Delhi Art Fair, International Art Fair. Thanks to Vinod sir, he organized this trip for his students and Ibadane Layavya and he organized the whole trip, the 2-day trip, weekend trip. And this is my first time traveling with him as well as first time visiting the Delhi International Art Fair in Delhi. So my experience बहुत सारो છે because આટલું મોટું આર્ટ ફેર ફર્સ્ટ ટાઈમ જોવું ઇટ્સ અ વેરી બિગ થિંગ સ્પેશિયલી આટલા મોટા આર્ટિસ્ટનું વર્ક જોવું ઇટ્સ વેરી બિગ થિંગ અને એમનું ડિટેલ વર્ક જોવું એમનું પેશન્સ જોવું એ એટલું ઇન્સ્પાયરિંગ છે કે હવે મને ઇન્સ્પાયર કરે છે ટુ અચીવ માય ગોલ ઇન લાઈફ તો યા ઇટ્સ અ ગ્રેટ એક્સપિરિયન્સ ઓવરઓલ. So good afternoon everyone. I am Hekal Bhandari pursuing interior designing from Anant National University. So I am standing in the Indian Art Fair. So this is my second time visiting the India Art Fair. Came with a Vinod sir. So I have never seen a person or never seen a faculty who puts a lot of effort. For example, Vinod sir the artist છે બટ એમની સાથે એ સ્ટુડન્ટ્સને બી ઇન્ડિયા આર્ટ ફેરમાં અને વેરિયસ એક્ઝિબિશન્સમાં વિઝિટ માટે લઈ જાય છે સો દેટ સ્ટુડન્ટને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ખબર પડે કે મોટા લેવલ પર કે ફ્રોમ સ્મોલ ટુ લાર્જ સ્કેલ પર કેવી રીતે જવું જોઈએ, કેટલા એફર્ટ્સ આપવા જોઈએ, શું જર્ની હોય છે. સો ઓલ ધીસ સ્મોલ થિંગ્સ આર મેન્ડેટરી ફોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટુ લર્ન વન્સ ઇન અ લાઈફ. And secondly, I saw there was a huge upgradation in the artwork and I would request all the art students to visit the India Art Fair once in a life at least, and I'll guarantee you that this will be your amazing and unbelievable experience. So thank you. So Vinod is a student to 2005 in year 3 and I have visited with him many art fairs, many local galleries in Ahmedabad also, and whenever we came to Delhi there was a different experience each time. So it's like you are learning every step, every phase of life in his journey. So yeah, like I would request कि जो भी कर रहे हो अच्छे से करो and do your best. Thank you.
मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं बनारस से हूँ। मैं विनोद सर कहें या भाई कहें, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं इनको पिछले करीब 14-15 सालों से जानता हूँ। ये मेरे दो अच्छे दोस्त ना हो के एक बड़े भाई भी हैं और इनका जो पैटर्न है काम करने का वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इनका जो शेड्यूल है हर एक जो परफेक्ट टाइमिंग, या ये यूँ कहें कि ये अपना एक टाइम जो लिमिट है हर एक चीज़ के साथ इनका फिक्स है। ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस करता है अपनी लाइफ में, या फिर किसी और की भी लाइफ में। अगर मुझे किसी को मोटिवेट करना हो तो मैं इनको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि विनोद जी से मिले, क्योंकि एक तो एज फैक्टर इनके ऊपर हावी नहीं है और एज ए आर्ट टीचर मुझे लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल हैं ये, और अपने स्टूडेंट के साथ जैसे ये आर्ट फेयर विजिट करा रहे हैं या फिर आगे से कोशिश कर रहे हैं। कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि अपने स्टूडेंट के साथ आते हैं, मेरी अक्सर मुलाकात होती है यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना दायरा बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हर एक चीज़ है, जैसे पेंटिंग है, स्कल्पचर है, इंस्टॉलेशन है, मतलब मीडिया है, जो भी चीज़ें हम सोचते हैं आर्ट में वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो एक जो एक लिमिटेशन हम बांध के रखते हैं आर्ट का, स्कूल कॉलेज जो भी है उससे निकल के अगर यहाँ पे विजिट करते हैं तो हमें लगता है कि हम कहाँ पे हैं, और अपने आप का सही आकलन करना वो तो ज़रूर आर्ट फेयर एक बार विजिट करना चाहिए। और मैं तो विनोद भाई के लिए बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक एंड ऐसे ही कंटिन्यू रखें। ये बहुत एक अच्छा उनका प्रयास है कि अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ पे आते हैं और उनको विजिट कराते हैं। सबको सीखना चाहिए इससे। धन्यवाद।
मैं डॉक्टर रेणु यादव गाज़ियाबाद में रहती हूँ और मैं यहाँ आर्ट फेयर में आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। और कोविड के बाद यह जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है यह बहुत ही प्रशंसनीय है और इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। हालांकि कोविड अभी गया नहीं है, हमारे और आपके बीच में ही है, लेकिन मैं बच्चों के लिए और न्यू जो यूथ है उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो ज़रूर आएँ और आके देखें और उनके लिए एक नया क्रिएशन यहाँ देखने को मिलेगा। और बेसिकली कोविड के बाद जो कलाकारों की जो इनर वॉइस थी वो जो बाहर निकल के आई है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और नए नए इन्होंने माध्यम में काम किया है, नए नए वेरिएशन में काम किया है, न्यू कलर्स और न्यू जो मीडियम और टेक्निक जो यूज़ किया है वो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो विनोद जी अहमदाबाद से जो छात्राओं को बच्चों को लेकर आए हैं ये बहुत ही अच्छा कार्य है और बच्चों को स्टूडियो और अपने चित्रकला कक्ष से अपने रूम से बाहर निकल करके समाज में जा कर के और नए नए तरीके के ये जो एग्जीबिशंस हैं उन्हें देखना चाहिए। और यह एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य एक विद्यालय के लिए भी है। और मैं एक सूचना दूंगी, एक आपको आग्रह करूंगी कि वो बच्चों को स्कूल से और जो चित्रकला कक्ष होता है उससे बाहर निकालें और नए नए माध्यमों से अवलोकन करें। हेलो, आर्ट फेयर, इंडिया आर्ट फेयर 2022 में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे काफ़ी आर्टिस्ट आए हुए हैं और ये एक अलग सा वाइब है, अलग सा इन्वायरमेंट है। और मुझे लगता है जैसा विनोद सर का जो अटेम्प्ट है लोगों को आर्ट से जोड़ना और मतलब थिंक बियॉन्ड योर क्लासरूम और थिंक बियॉन्ड योर स्पेस। आपको आर्ट डेफिनेटली करना चाहिए, आर्ट एक प्रैक्टिस की चीज़ है, बट आर्ट को समझना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अनलेस अनटिल आप उसको समझते नहीं हैं तो चीज़ें आपके लिए बाद में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो इस केस में आर्ट को करना, उसके साथ साथ आर्ट को समझना, मतलब अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ी चीज़ों को समझिए, दूसरे का जो है पर्सपेक्टिव समझिए, पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। वो क्या है कि आपको आर्ट को समझने में काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगा। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से कि जो विनोद सर का जो अप्रोच है कि वे ऑफ लर्निंग और वे ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, वो एक जो है बड़ा अच्छा अप्रोच है और मुझे लगता है कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और बाकी लोग बच्चों को भी यहाँ पे आना चाहिए सो दैट कि वो समझ सके कि सिर्फ जो है आर्ट में अलग अलग स्टाइल होते हैं, अलग अलग मीडियम होते हैं। और 2 साल बाद, लगभग 2-2.5 साल बाद जो है ये आर्ट फेयर हो रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली इसमें काफ़ी रिफ्रेशनेस दिख रही है। आर्टिस्ट ने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यूटिलाइज जो है आर्टिस्टों ने इस पूरे पीरियड को करा है और जो झलक रही है डेफिनेटली उनके काम में। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा जगह है जहाँ पे हम और इवन हम एक दूसरे से आर्टिस्ट यहाँ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी बात बता रहे हैं, उन्होंने क्या करा, क्या एक्सपीरियंस करा। तो डेफिनेटली एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, एज वेल एज आप उसके साथ जो है नई और जो आज की डेट में प्रैक्टिसेस हैं उनको समझने का आपको मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से मैं आपको बोलूँगा कि आपको भी आगे के आने वाले ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एटलीस्ट विज़िट तो ज़रूर करें। थैंक यू।
हाय फ्रेंड्स, मैं अखिलेश हूँ और मैं एज अ आर्टिस्ट यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, और विनोद सर से मेरी बहुत पुरानी पहचान है। विनोद सर बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और बड़े भाई भी हैं, और एज अ आर्टिस्ट उनसे बहुत कुछ मैं सीखता भी रहता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल तो दिल्ली में हूँ और आर्ट फेयर को इंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे नए नए तरीके के वर्क कैसे चल रहे हैं अभी कंटेम्प्रेरी वर्क, वो देखने को और सीखने को मिल रहा है। और अभी सिर्फ और सिर्फ हम रूम में बैठ के काम करने से कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा। काम के साथ साथ हमें वर्क नए नए वर्क देखने की ज़रूरत है। किस तरह का मार्केट में काम चल रहा है, गैलरीज किस तरह के वर्क को प्रमोट कर रही है, वो सारी चीज़ें देखना है तो आपको आर्ट फेयर में आना होगा। और बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी नेक्स्ट आर्ट फेयर जब भी हो ज़रूर आइए, दिल्ली में या जहाँ भी हो ज़रूर विज़िट करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।